The rich man is summoned before the king. The king declared the rich man to be the murderer. He was also the owner of the house, but he said that his father had ordered the jewelry. The king consulted his minister. He decided that the owner be punished in his father's place. The king asked for a new stake to be made ready for the owner to die. But the owner was very thin. He could not be executed. The king was worried about it. Then he ordered to search a man who was fit for the stake. He should be executed. अंततोगत्वा राजा को लगता है कि वह अमीर व्यक्ति ही इसके लिए दोषी है और राजा उसे सजा देता है मौत की। लेकिन जब उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा होता है तो वह उसमें फिट नहीं बैठता है क्योंकि वह बहुत दुबला पतला था। राजा चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि किसी न किसी को तो लटकना ही चाहिए, किसी न किसी को तो फांसी दी ही जानी चाहिए। वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जाओ एक ऐसे आदमी को खोजो जो इस फांसी के फंदे के लिए फिट बैठे। The disciple is in trouble. The disciple was found fit for the stake. He was brought to the place of execution. The disciple now remembered his wise guru's words. He prayed to his guru. The guru had magic powers to see the past and the future. He saw everything. He arrived at once to save his disciple. He told his disciple something in a low voice. The disciple understood this. राजा के सैनिक शिष्य के पास पहुंचते हैं। वह अत्यधिक मोटा होता है और फांसी के फंदे पर लटकाए जाने योग्य होता है। शिष्य मुश्किल में पड़ जाता है। वह अपने गुरु को याद करने लगता है। उसके गुरु के पास कुछ जादुई पावर थे कि वह पास्ट और फ्यूचर को देख सकते थे। उसके गुरु वहां प्रकट होते हैं और अपने शिष्य के कानों में धीरे से कुछ कहते हैं। शिष्य उनकी बात को समझ जाता है। The Guru's trick to save his disciple. The Guru and the disciple now started fighting. The Guru wanted to die first. The king asked the Guru why he wanted to die. The Guru told the king in his ears that their city was unique. This was the stake of God of Justice. The stake was new. It was never used earlier on criminals. Whoever died on it first would be born a king. Whoever died next would be born as a minister. गुरु और शिष्य आपस में फाइट करने लगे। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और गुरु से पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। गुरु बताता है कि यह फांसी का फंदा और आपका राज्य बड़ा यूनिक है। जो सर्वप्रथम इस फांसी के फंदे पर लटकेगा वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा और जो दूसरा फांसी के फंदे पर लटकने वाला होगा वह इस राज्य का अगले जन्म में मंत्री बनेगा। The king decides to die. The king thought over the whole case. He did not want to lose the kingdom in his next birth also. So he talked to his minister. The king said that they would go on stake themselves. Thus they would be reborn as king and minister again. The king and minister went secretly to the prison. Then they released the guru and the disciple. They put themselves in their places. So they were taken to the stake and executed. राजा और मंत्री संपूर्ण केस पर विचार करने लगे। राजा ने अपनी मंत्री से बात किया। दोनों ने निर्णय लिया
कि वो स्वतः को ही फांसी के फंदे पर लटका देंगे, क्योंकि वो अगले जन्म में भी उस राज्य के सुख को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात्रि के अंधेरे में राजा और उनके मंत्री जाकर गुरु और उसके शिष्य को प्रिजन में से आज़ाद कर देते हैं और स्वयं को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को गुरु और शिष्य के रूप में परिवर्तित कर लिया था। द गुरु एंड डिसाइपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन डाउन। द पीपल mourned their deaths. They discussed the future of the kingdom. Suddenly, some people thought of the guru and the disciple. They were secretly leaving the city. People saw them. They requested them to be their new king and the minister. But they put one condition. It was to change all the old laws. So they changed the laws. जब राजा और मंत्री को स्टैक पर से नीचे उतारा गया, जनता यह देखकर दुखी हो जाती है। वो उस राज्य के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। अचानक उसी भीड़ में से कोई बताता है कि उसने गुरु और शिष्य को राज्य से बाहर जाते हुए देखा। वो गुपचुप तरीके से राज्य को छोड़कर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें देखा। लोग उनके पास पहुंचे, गुरु और शिष्य से निवेदन किया कि आप ही हमारे राज्य के नए राजा और मंत्री हो जाइए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि वह एक ही शर्त पर उस राज्य के राजा और मंत्री बनेंगे कि पुराने जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों को बदल दिया जाए। जनता इस बात पर राजी हो जाती है और ऐसा होता भी है। वह उस राज्य के सारे गलत नियमों को परिवर्तित कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इस समय ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको फ़िलहाल चैप्टर्स की पूरी समरी प्रिपेयर करनी है, पूरी स्टोरी आपको तैयार करनी है।